जय जिनेंद एवरीबॉडी अगेन who have just joined. हम बस 1 मिनट और लेंगे फिर we will get started. मेरा नाम है आकाश. Thank you for welcoming me. रीलोड पेज का वो वहाँ दे रहा है रीलोड पेज का ऑप्शन. Jai Jineend, can you hear me? Please hit the like button and say Jai Jineend. Say hi, namaste, hello, namaskar, Jai Jineend. The best when we are in the Jain group. So please आप जय जिनेंद लिख के मैसेज भेजें कि आपको सुनाई दे रहा है मेरा सब कुछ, पूरी आवाज़ क्लियर है. एंड नाउ वी गोना गेट स्टार्टेड. सो Jai Jineend, Akash here again. Welcome everybody. And first of all, thank you Jain Ladies Association को मुझे यहाँ पे invite करने के लिए. It's a good collaboration with you guys along with RS Magical. So I'm coming from RS Magical side. I'm one of the chef there. तो basically who am I? मेरा नाम है आकाश and basically by profession I'm not a cook, I'm not a chef. But by profession, I am a digital transformation specialist. In earlier days, we used to call it as project manager. मैं यहाँ पे Emirates में काम कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से. So that's my work profile. But just थोड़ा पीछे जाए, so I have been traveling the whole world for 12 years now. जब से मैंने अपना masters पूरा करा था, I went from India to after my bachelor's to do masters from France. And basically मेरे को थोड़ा और cultures के बारे में जानना था, so that's why I opted out to go out. And then I started to stay in France, and then I have traveled around in the journey, which I'll go through it along when जब भी हम ये बहुत सारी बातें करेंगे इटली के बारे में. My visits there, my visit to and when I used to work in south of France, वहाँ से इटली सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे है. So it's almost Delhi to Gurgaon बोलूँगा मैं, ना ही ज़्यादा दूर नहीं है. So basically I used to live there, and that is where I actually started to fascinate. When I reached France, मैं जब तक कुछ खाना नहीं बनाता था, and obviously मम्मी के हाथ का and बाकी सबके हाथ का खाना खाता था. Now since we have मैं वहाँ पहुँचा तो obviously hostel में खुद को बनाना था. Being a vegetarian, it was hard living in France, but मैंने फिर उसी चक्कर में necessity is mother of all inventions, तो वही हुआ था मेरे साथ भी. So basically I started getting interest in cooking. It comes from my hereditary also, from my parents also, but अब मैंने उसको पूरा fusion blend कर दिया है जहाँ मैंने travel करा है. So I'll go through that journey. Majorly आज Italian के बारे में बात करेंगे, आज थोड़ा French के बारे में बात करेंगे. And then I have traveled around in Europe itself. I used to work in Belgium, then Hong Kong, and then I landed up in Dubai. तो ये मेरी journey थी. But again I'm saying thank you to Jain Ladies Association and RS Magical. It is really great to collaborate with you guys. Very happy to collaborate with you guys again. So अब शुरू करते हैं. And again, first of all, before we start, it's Women Empower Day था last week. It was so I want to wish all of you very very happy Women's Day. It's not about that we celebrate कि हम एक ही दिन celebrate करें. I think जहाँ भी हैं आप, जो भी कर रहे हैं, चाहे आप housewife हैं, चाहे आप working हैं plus house कर रहे हैं या सिर्फ work कर रहे हैं, you all are also making a difference. आप सारे ही पूरा difference दे रहे हैं. There is no gender bias in my bottom of my heart. So definitely I respect all of you. And again I would like to wish you happy very International Women's Day. So अब शुरू करते हैं. So there are going to be 3 dishes which I'm going to do today in front of you. One of them is bruschetta. Bruschetta you can pronounce at 2 ways, bruschetta and bruschetta also. So it's American and UK English, which is a bit different how we pronounce it. तो एक ब्रुस्केटा बनाने जा रहे हैं हम. उसके बाद कैनेलोनी पास्ता बनाएंगे. कैनेलोनी पास्ता
and then we will do a little light mocktail drink. सारी ही dishes जैन हैं, drink भी mocktail जो है वो भी पूरी हमने जैन ही बनाई है. So please आप enjoy करें, अपना पेन एंड पेपर ले लें, अगर आपको मोबाइल पे लिखना है मोबाइल पे नोट्स ले लें, but please try and basically do keep some notes. Anyway आपके पास वीडियो तो होगी, but I think pen and paper always helps when you're doing recipes. So सबसे पहले हम लोग ब्रुश्केटा करेंगे, लेकिन कैनेलोनी में जो दो चीजें चाहिए हमें. कैनेलोनी itself, which is a different type of pasta. आप देख पा रहे हैं, this is like this. I can see you there, yeah. So this is a different type of pasta and ये सारे ही ingredients by the way जितने भी dishes के हैं इंडिया में अवेलेबल हैं. हमने चेक करा है अमेजोन पे इंडिया के कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं, एंड इट वाज अवेलेबल, एंड इफ नॉट आई विल ट्राई टू गिव यू आल्सो बैकअप आल्सो, बट सब कुछ अमेजोन पे अवेलेबल है. अमेजोन नहीं तो आपके नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर पे अवेलेबल हो गई होगा. So basically, first of all, let's start with some preparation for cannelloni pasta, which which is basically I'm gonna saute some spinach, okay, and I'm gonna actually take cannelloni and boil it also. Cannelloni को boil करने की जरूरत नहीं है. We're just gonna take this and put it in warm water, and मैं वो warm water से निकाल के बस उसको एक bowl में रख दूंगा and उसको cool होने देंगे जब तक फिर हम bruschetta बनाएंगे. Bruschetta is our starter, so we will start with that. All good? कोई क्वेश्चन अभी तक? Okay, so I'm gonna take my cannellonis. Cannelloni पास्ता अगर आपको बाई चांस अगर नहीं भी मिलता है तो आप जो पास्ता शीट्स आती है उसका रोल करके भी बना सकते हैं, उसको बॉईल करके उसको आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, बट यू विल गेट इट. अमेजोन पे आप ऑर्डर करेंगे, इट्स नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो एंड इट्स इजीली अवेलेबल इन इंडिया. तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें इसको वार्म वाटर में हम डालेंगे और एकदम से निकाल देंगे. That's the trick about it. There is no complications which we need to do. It's not to boil the pasta, it is just to get the sheet warm because ये बहुत ही thin है. So this is cannelloni, cannelloni, cannelloni. It is bit different. ये नॉर्मल पास्ता की तरह नहीं है, इसकी डिश भी थोड़ा दूसरे तरीके से बनेगी, बट लेट्स सी, वो मैं आपको बताऊंगा. कैनेलोनी मैं ये सारे बॉईल करके एक साइड में रख रहा हूँ. एंड ऑब्वियसली जब भी आप पास्ता उबालते हैं, आई एम नॉट गोना टेल द बेसिक्स आपको पता है. जब भी हम पास्ता उबालते हैं तो वाटर में ऑलिव ऑयल और सॉल्ट ज़रूर डालें. ऑलिव ऑयल जस्ट सो दैट दे डोंट स्टिक to each other, and basically salt की थोड़ा सा उसमें blend आ जाए, otherwise it will be tasting blunt later on. तो ये मैंने सारे कैनेलोनीज इसमें डाल दिए हैं. अब ये हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं. मैं आपको बीच बीच में कुछ चीज़ें पूछता रहूँगा, सो प्लीज़ कीप योर गूगल हैंडी. तो आप अपने गूगल पे ज़रूर रहें और मैं आपको क्वेश्चंस पूछता रहूँगा कि what is the about cannelloni or about the dishes, about the ingredients I'm using. So please keep your Google ready or be attentive, and at the end we will do some Q&A so that हम थोड़ा engaging बना सकें इसे. तो मैंने वो बॉईल करने के लिए, कूल करने के लिए रख दिया. Now I'm gonna come to this one where I'm gonna saute spinach. Spinach around 200 grams है approximately, and this cannelloni will serve approximately 2 people. तो ये देखिए around 200 grams पहले से ही इसको वॉश करके मैंने रखा हुआ है. Again nothing complicated in this also. So I'm just gonna put some olive oil in the warm pan now. Olive oil please try करें कि extra virgin olive oil ही हो. In Italian dishes in general it really helps a lot. जो टेक्सचर होता है डिशेस का वो उसी से आता है. सो प्लीज़ ट्राई कि आप थोड़ा सा इसको वो कर सकें. एंड मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, थोड़ा सा मैं सॉल्ट डालने जा रहा हूँ बिकॉज हम सॉटे करेंगे इसको. अराउंड अप्रोक्सीमेटली हाफ डाला है मैंने. इसमें और कुछ नहीं डालेंगे. मैं आई एम जस्ट गोना पुट द spinach डायरेक्ट. दैट मीन्स मैंने सही टाइम पे रखा था. अगर ये पूरा वो वार्म हो रहा है
अगर ये आवाज़ आई है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सही टाइम पर रखा था, बिकॉज ऑयल जो है आप ठंडे पालक में ठंड ऑयल नहीं डाल सकते। एंड ऑब्वियसली पालक की जब वाटर होगा तो इसमें ये थोड़ा सा आवाज़ करेगा ही, तो प्लीज़ डोंट गेट स्केयर्ड अबाउट इट। अब इससे हमारा क्या होगा, पालक सौटे हो जाएगा और इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा पालक का वो सारा इसमें से निकल जाएगा। ये अगेन ये कैनेलोनी पास्ता की मैं तैयारी करके रख रहा हूँ। हम पहली डिश जो है ब्रुश्केटा बनाएंगे, वो राइट एग्जैक्टली आफ्टर दिस सॉटे ऑफ द स्पिनच। आई विल कम टू दैट पॉइंट। इसको कम कर देते हैं। कैन यू सी, इसमें से देखिए पूरा वाटर इसमें बाहर आने लगा। सो विच वी गोना इवेपोरेट। हम इसको थोड़ी देर साइड में रख देंगे, अभी थोड़ा सा और कुक करके इसको, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कूल होने रख देंगे। एंड जब तक हम फिर ब्रुश्केटा बनाएंगे। जय जिनेंद्र, अगर अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने कुछ ज़्यादा स्टार्ट नहीं करा है, सिर्फ कैनेलोनी पास्ता उबाल के रखा है और स्पिनच हमने सॉटे करके रख रहे हैं, बस इसे चिल करने। अब इसमें जब आपको हटाना है उसके लिए हमें पालक को बिल्कुल भी ज़्यादा सॉटे भी नहीं करना और कम भी नहीं। हल्की सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, दैट मीन्स द वाटर हैज स्टार्टेड गॉन एंड नाउ पालक की आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आई एम गोना स्विच इट ऑफ नाउ। इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 मिनट लगे थे करने में टोटल, बल्कि कम ही लग जाता है अगर आप इंडियन गैस पे बनाएंगे तो। इट्स नॉट दैट मच टाइम। सो स्पिनच इज डन। इसको कैन यू सी, ये आपका स्पिनच है और ये मैं यहाँ पे कूल करने रख रहा हूँ। आई एम गोना स्विच ऑफ ऑल द stoves now and move here, which is to do our bruschetta. Now bruschetta बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं and it is one of the famous appetizers in Italy. Majorly restaurants में vegetarian में हमें यही मिलता था and obviously I used to get lot of घास फूस whenever I used to ask for salad. वो मेरे सामने बस इतना बड़ा bowl एक सिर्फ leaves का रख देते थे and I was like wow, that's a great starter. So with all these things, you know what I could see, what they do as vegetarians also. So it is very important that कि मैं उसको भी कंटिन्यू करूँ। तो बेसिकली इट्स अ ब्रेड लोफ। अगेन दिस इज अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो। अगर आपको ये नहीं मिलता है आप थोड़ा सा थिक वाला नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ये यूज़ करें। इट्स कॉल्ड एज फ्रेंच बकेट, फ्रेंच ब्रेड इंडिया में। तो ये आजकल ईजिली अवेलेबल है नॉर्मल बेकरी स्टोर्स पे भी जो आपके घर के पास है। एंड अगेन अमेजॉन आपको जो फ्रेश कार्ट है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, अमेजॉन और एनी ऑफ द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसको मैंने कट करके रखा हुआ है ऐसे पहले से ही, बट आई एम गोना शो यू टू बेसिकली इसको कट कैसे करना है। बिकॉज एक ज़रूरी बात इसमें ये है कि हमें जो है कट वो बिल्कुल सीधा नहीं करना है, या एंड हमें थोड़ा सा एंगल लेके कट करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना रिमूव दिस एक्स्ट्रा वन। यहाँ पर रख देता हूँ। थोड़ा सा थिक लें, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1 to 2 सेंटीमीटर्स का लें ज़रूर, बिकॉज अभी वो श्रिंक हो जाएगा जब इस पे हम ऑलिव ऑयल और वो सब लगाएंगे। सो यू टेक इट लाइक दिस
ये मैंने एक्स्ट्रा रिमूव कर दिया। अब मैं इसको कट करने जा रहा हूँ, वो है एंगल, विच इज काइंड ऑफ 45 डिग्रीज एंगल। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, शायद पहले नहीं दिख रहा था। एंड आई एम गोना शो यू। मैं सिर्फ आपके सामने एक ब्रेड कट करूंगा, पहले से ही रखी हुई है हमने काट के। सो इफ यू सी, दिस इज बिट थिक, इज लाइक दिस, एंड आई एम गोना कीप इट हियर सो दैट वी कैन मेक इट। ऑलराइट, तो अब मैं इधर आने वाला हूँ जहाँ पे हम इसको प्रिपेयर करना है। सो बेसिकली इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ टोमेटो टू बी पुट इन द ब्रुश्केटा। नाउ टोमेटो के लिए मैं उसको टोमेटो को उबालना पड़ता है। यस करेक्ट, टोमेटो को आपको बॉईल करना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट लाइक बॉइलिंग। मैं एक टोमेटो को फॉर इन वार्म वाटर, जिसमें हमने पास्ता करा था, यू कैन यूज सेम वाटर, नो प्रॉब्लम्स, उसी में ही मैं ये टोमेटो रखने जा रहा हूँ। और ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट लगेंगे। अनटिल यू सी द इसका जो छिलका है वो पील कर सकते हो आप, तो आपको वो दिख जाएगा पट करके जो होता है, बस उसी टाइम आपको निकाल लेना है। बी केयरफुल इन टेकिंग इट आउट, इट विल बी बिट सॉफ्ट एंड दैट्स द होल पॉइंट। और इसको ज़रूरी क्यों है, इसका छिलका हमें उतारना ज़रूरी हो जाता है टमाटर का, बिकॉज इट डजंट गो विद द ब्लेंड ऑफ व्हाट वी गोना डू विद द इंग्रेडिएंट्स। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि दैट बेसिकली इन द ऑलिव ऑयल वी गोना पुट सम ब्रशिंग ऑफ द ऑलिव ऑयल। मैं इसमें ले लूँगा ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, सो दैट आई कैन ब्रश। अगेन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा इसमें निकाल के रख देता हूँ। दिस इज माय ब्रश या, एंड मैं ब्रेड्स को दोनों साइड से ब्रश करने वाला हूँ। और उसके बाद हम ब्रेड को प्री हीटेड ओवन में लगा देंगे। Okay, Akash, there is one question for you. Can we take a simple bread loaf which we generally get in the market या कोई specific bread है? बेटर है कि आप फ्रेंच बकेट या फिर फ्रेंच ट्रेडिशनल ब्रेड यूज करें। फ्रेंच बकेट इज अवेलेबल नाउ डेज, बट येस यू कैन यूज द नॉर्मल ब्रेड लोफ आल्सो। जो आपका नॉर्मल ब्रेड लोफ आता है आप उसको यूज कर लें, उसको 2 हाफ में करके एंड देन अगेन कट लाइक दिस, बिकॉज यू वांट स्टिल इट टू बी थिक। आपको ये पतला ब्रेड स्लाइस की तरह नहीं चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा थिक चाहिए। उसमें फ्रेंच जो लोफ आता है और जो फ्रेंच बकेट आते हैं, इसमें जो कॉर्नर्स होते हैं ब्रेड के वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो उनको बेक करने का तरीका ये होता है। So yes, I would recommend to use a bread loaf or a French baguette if you have, not bread slices. Bread slices में ये इतना काम नहीं करेगा because bread slices are, you know, made with different dough और वो थोड़ा सा extra soft होती है. Okay, can you repeat the name of the bread? French baguette. So it's a traditional French bread. So आप इसका नाम भी डाल सकते हैं. Maybe Shubhanshi, you can help me down to put the name of the bread in the comments, please. Okay, I'll do. So behind the cameras, it's Shubhanshi, my wife. She's gonna take all the questions जो भी आपके आएंगे बीच में. Please keep it interactive and keep on asking. It's no problems. Questions बहुत ज़रूरी हैं ऐसे जब हम cooking करते हैं live sessions में especially. So now nothing but I have just brushed them with some olive oil. इसमें कंजूसी मत करेगा, olive oil से कोई फैट नहीं बढ़ता है, so it's all good. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल फैट नहीं बढ़ता है, but it's a healthy oil. Which even you take in detox diets also. Even doctors recommend करते हैं कि आप olive oil की सब्जी बनाओ या olive oil का use करो salad. So I'm gonna put this in the oven for 5 minutes. Not even 5 minutes actually. हम इसको कम टाइम के लिए रखेंगे और एक साइड पे ही हम बेक करेंगे। उसके बाद वो जब वापस आ जाएगी उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लगा के फिर वापस से बेक करेंगे। It will not be a very highly preheated oven. It's a very light touch preheated oven. I'm going to use a small oven for this one and put it there. Okay. तो मैं 2 टाइप के आपको ब्रुश्केटा दिखाने वाला हूँ, which is one is very traditional one, टोमेटो से जो बनता है, and the other one with avocado, which I really prefer. It's a healthy option also. टमाटो वाला भी हेल्दी है, बट एवोकाडो इज़ वेरी गुड. एवोकाडो इज़ गुड फॉर योर हार्ट ऑल्सो, एंड it's important. It's just a different thing which I would like to try with all of you.
सो बेसिकली इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें आई एम गोना पुट 3 or 4 spoons of olive oil. Okay, Akash, there's one more question Yes. from Payal Runawal. She's asking, but generally many people don't like olive oil. So what you can use? Butter is fine? बटर इज फाइन, बट बटर आप थोड़ा अनसॉल्टेड यूज करेंगे तो बेटर है, बिकॉज आप सॉल्ट भी डालने वाले हैं ऊपर से. सो इट्स बेटर टू यूज अनसॉल्टेड बटर विच अमूल का आता है. बट ऑलिव ऑयल इन जनरल कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं है, सो इट्स even if still some people don't like, it's okay, we can use the other option, no problems with that. I'm going to take some balsamic vinegar. This is also important ingredient. Yeah, it's a balsamic vinegar. It's one of the important ingredients. ब्रुस्केटा को ये थोड़ा सा अपने टेस्ट का बनाता है, थोड़ा सा देसी टाइप का बनाता है अगर मैं बोलूँ तो, बट एक्चुअली दे ऑल्सो यूज इट. इट्स नॉट दैट दे आर नॉट यूजिंग इट. ये जनरली यूज होता है. दिस again available on Amazon, and basically this is the balsamic vinegar. And इसको approximately मैंने 4 olive oil डाले थे, so I'm going to put a very little amount in tomato one of approximately 1 के बराबर. और इसमें एवोकाडो वाले में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, because एवोकाडो जो है उसमें खुद का ही बहुत कम टेस्ट होता है. इट्स अ वेरी ब्लंट टेस्ट. या सो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और उसमें थोड़ा सा कम जाएगा टमाटो वाला में. ज़्यादा मत डालिएगा बाल्समिक विनेगर, बिकॉज अगेन इट विल कड़वा हो जाएगा उससे. सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ इज टू पुट सम सॉल्ट, पेपर एंड बेसिल. या नाउ वी ट्राई टू यूज फ्रेश बेसिल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा फ्रेश यूज करें ब्रुस्केटा के लिए. इट्स बेटर. ये हाफ मैंने डाला है, हाफ स्पून. और ब्लैक पेपर ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली हाफ. यहाँ पे दुबई वाला ब्लैक पेपर इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, सो प्लीज़ बी केयरफुल. अगर आपका इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ब्लैक पेपर तो उसको कम कर दीजिएगा. ये हाफ. ओके, अब इसमें थोड़े से ऑलिव्स डाल देते हैं. Okay, and Neelam Sethia wants to know, is there any other substitute for balsamic vinegar? आई डोंट नो ऑफ बाल्समिक विनेगर. आप टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो ऑफ, बट आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं. आई थिंक व्हाट विल बी बेटर इज जो आप ऑलिव ऑयल ऑलिव्स है, सॉरी ऑलिव्स को आप थोड़ा सा जो अपना नॉर्मल विनेगर होता है जो आप चाइनीज में, इंडियन फूड कुकिंग में भी यूज करते हैं, try and put olives in that for a while. I think it will give a good blend of थोड़ा सा चटपटा बोलते हैं, लेकिन it's not really चटपटा exactly, but it's a bit different to what. अब इसमें मैंने थोड़ा सा एवोकाडो वाले में ज़्यादा ऑलिव्स डाले हैं और टोमेटो वाले में कम डाले हैं. Now I'm gonna mix it, keep it, and then ये जो टोमेटो वहाँ पे बॉईल पहले से ही मैंने बॉईल करके और ठंडा करके रखा हुआ है. I'm gonna show you how to cut that also. It's important. ये पहले से ही बॉइल्ड है, ये पील हुआ है, सॉरी पील करना है, बट आई मीन ये यहाँ से कटा हुआ. आई थिंक यू नो व्हाट आई मीन. इसमें जो आपका अंदर का जो टोमेटो का लिक्विड है वो हम अलग से निकाल के बाद में प्योरे में यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मल प्योरे जो बनता है, इवन इन द कैनेलोनी पास्ता प्योरे बनाएंगे हम, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं आप. ये मैं इसका लिक्विड निकाल रहा हूँ. cut from all the 4 angles. अगेन मैं इसके सारे सीड्स निकाल रहा हूँ, लिक्विड निकाल रहा हूँ, और ये ड्राई वाला पार्ट है मैं इधर रख रहा हूँ.
बाल्समिक विनेगर, आपने एक क्वेश्चन में मेरे को एकदम से याद आया, एक्चुअली आप एक काम और कर सकते हैं, एक्चुअली बाल्समिक विनेगर का छोटा बॉटल खरीद के रख सकते हैं, इट डजंट गो बैड फॉर ईयर्स, 2 साल तक उसको कुछ नहीं होता है जनरली, अगर अच्छी क्वालिटी का आपने खरीदा है। एंड इट इज़ यूज्ड इन वेराइटी ऑफ ब्रेड डिशेस ऑफ इटालियन एंड ऑल्सो इन सैलेड्स, सीजर सैलेड, उन सब में वो यूज़ होता है, तो आप वहाँ पे भी वो यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ड्रेसिंग, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बॉटल मंगा लें, अगेन अमेजोन पे अवेलेबल है। एंड ट्राई एंड ऑर्डर अ लिटिल बिट थिक वन। इवन आप नॉर्मल ब्रेड्स को है, ब्रेड ऑलिव ऑयल एंड आप उसको विनेगर रख के खाएंगे एंड सॉल्ट एंड पेपर, इट रियली टेस्ट वेरी नाइस। दैट्स लाइक वो जब जाते हैं, जैसे हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स में पापड़ देते हैं, वहाँ पे हमें फ्रेश ब्रेड्स मिलती थी एंड दे यूज्ड टू गिव अस ऑलिव ऑयल, balsamic vinegar, salt and pepper, and we used to dip the bread in that and eat. It really tastes very nice. तो अब मैं इसको क्यूब्स बनाने वाला हूँ, छोटे छोटे। I'm gonna only do 3 bruschetta pieces in front of you, but you can do a big loaf also, obviously for the whole family. I think शुभांशी वो ब्रेड हो गया होगा। Okay, thank you. लिक्विड वाला पार्ट मत यूज़ करिएगा बिल्कुल भी, ऐसा नहीं बिल्कुल ही ड्राई टमाटो यूज़ करना है, तो इट्स नॉट अ ड्राई टमाटो एट ऑल, इट्स जस्ट बिट नॉट सॉगी। मैंने सिर्फ 1 टमाटो लिया है, 1 टमाटो में आपके आराम से 5 से 6 ब्रुश्केटा आराम से बन जाते हैं। ओके, नाउ जो ये हमारा मिक्स वाला बोल था, मैं उसके अंदर इसको डालने वाला हूँ। आई होप यू कैन स्टिल सी मी। नाउ कैन एनीबडी टेल मी कि एवोकाडो इन जनरल, मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही बताया था कि व्हाट इज इट गुड फॉर, विच बॉडी पार्ट इट हेल्प्स। प्लीज सेंड योर कमेंट्स in your answers, and Shivanshi, if you don't mind, if anybody gives a wrong answer, please do tell me, and if anybody gives the right answer, let's please tell me that also. Okay. So I'll show you. Yeah, now let's keep it for 2 minutes, until then हम avocado वाला बनाते हैं। Now avocado देखिए मैंने किस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पे इसकी जो एवोकाडो की सीड है वो मैंने हटाई नहीं। नाउ व्हाट हैपेंस इज एवोकाडो द मोमेंट यू टेक ऑफ द सीड इवन फ्रॉम द चॉप्ड वंस, वो थोड़ा सा काला पड़ना शुरू हो जाएगा। आप चाहे बेक नाचोस बना रहे हो, चाहे कभी भी बना रहे हो, आपको लगा होगा कि एवोकाडो बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप द सीड ऑफ एवोकाडो राइट इन मिडल, एंड उससे वो ब्लैक नहीं पड़ेगा। ओके, सो आई एम गोना पुट द एवोकाडो इन द अदर मिक्स नाउ। उसको थोड़ी देर इसको हम मिक्स होने रख देंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए। एवोकाडो बिल्कुल आपको रॉ भी नहीं लेना है और बिल्कुल राइप भी नहीं लेना है, अदरवाइज इट विल गेट वेरी सॉगी। It's almost half avocado I'm putting in the quantity which I've shown you. Okay, Sonal and Ankita and Soni Bothra answered it is heart. Correct. And Jyoti Jain, she's also answered heart. It is very good for cholesterol. मैं सीशल्स गया था, सीशल्स में this big, जितना अपना आम का साइज होता है, this my hand size,
we got that big avocados and वो breakfast में वहाँ पे fresh fruit में serve करते, it was really yum. Obviously इतने बड़े avocados कहीं नहीं मिलते, it was a tropical country, tropical place, that's why you get it. Again, this is a tropical food, but nowadays in India very easily available and very good for cholesterol. जो भी हम खाते हैं इंडियन फूड में तला वगैरह, कोलेस्ट्रॉल उसका ऑब्वियसली हम लोगों का हाई रहता है. सो इट्स एवोकाडो एडिंग इन आवर नॉर्मल मेन्यू इज गुड. सो ये दोनों मैंने रख दिए हैं. यू कैन सी नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज टू टेक सम फ्रेश basil which is from our garden. There it is. We have a few small plants of basil. So मैं उसको लेने वाला हूँ. Fresh is always better. अब मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्लांट्स आजकल इन जनरल इन इंडिया में अवेलेबल हैं. तो अगर आपको ऐसा अगर कोई मिलता है सो यू कैन ईजिली टेक इट. एंड बेसिल को एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने प्लांट खरीदा है तो धूप देना उसको बहुत ज़रूरी, चाहे गर्मी भी हो, एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे. स्मॉल प्लांट भी है तो आप उसको धूप में ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज इट विल डाई ऑफ. शिवांशी इफ यू डोंट माइंड, जब तक मैं थोड़ा सा इसमें ड्राई बेसिल डाला, इसमें ब्रुस्केटा में और कोई भी हर्ब्स नहीं जाते हैं, सिर्फ बेसिल जाते हैं. ऑब्वियसली सॉल्ट पेपर गया था, बट नाउ आई एम गोना पुट सम ड्राई आल्सो. ड्राई इंडिया में बहुत ज़्यादा ही इजीली अवेलेबल है. आई एम श्योर इट विल बी इन योर किचन कबर्ड्स आल्सो, बट अगर I would definitely recommend for fresh ones. It's very very good. अगर आप फ्रेश नहीं डालेंगे तो ब्रुस्केटा का वो वाला फ्लेवर नहीं आएगा, बिकॉज फ्रेश बासिल का कुछ खुशबू ही अलग होती है ना. आप उसका प्लांट रख देंगे अगर बाहर तो सबसे ज़्यादा वो ही अट्रैक्ट करता है बर्ड्स वगैरह को, तो इसलिए हम तो बाहर रखते नहीं हैं. बट इन जनरल आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना मेक अ बंच ऑफ इट एंड chop it fine. It's good enough. Approximately मैंने 5 leaves दिया है. इसको अभी भी कुछ लोग कह सकते हैं कि कम है. You can put more also, and the more the basil, the more the merrier. Yeah, but obviously एकदम इतना ज़्यादा भी नहीं डालना कि पूरा कड़वा हो जाए, because basil at the end will taste थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा अगर हम ये olive oil वगैरह नहीं डालेंगे. So in any dishes of pasta and all that, tomato के साथ Italian dishes में basil जाना बहुत ज़रूरी होता है. So I put the basil and avocado one also. It will give a nice blend. Let's leave it for a couple of minutes so that it's ready. Meanwhile, अब हमारा थोड़ा सा cannelloni का भी काम करना है हमें. But this is now the mixture is almost ready. We can keep it for 2 minutes. It generally mix अच्छे से हो जाता है, blend हो जाता है generally से. It's good. So now the breads थी जो हमने loaf काटा था वो बेक होकर आ चुकी हैं. बिल्कुल लाइट बेक करा है. Can you see it? इधर आपको अगर ज़्यादा देर रखना है, क्रिस्प चाहिए तो थोड़ा सा 5 मिनट तक, बट लो टेम्परेचर. बट बेटर है कि आप मीडियम टेम्परेचर पे रख के इसको 1 से 2 मिनट में भी निकाल सकते हैं. दैट्स वेरी इजी एंड देन इट विल कम आउट. इट डजंट नीड टू बी ब्राउन. आपको जो नीचे का ब्रेड है वो ब्राउन नहीं करना है, क्रिस्पी रहना है, ब्राउन नहीं करना है. दैट्स द ट्रिक अबाउट ब्रुस्केटा. या तो इसीलिए भी आप देखोगे ये ब्राउन नहीं है बट इट्स क्रिस्पी ऑल्सो. इट विल बी सी. ओके गुड. सो अब शायद हमारा बातें करते करते थोड़ा सा हो गया है मिक्सचर. आई एम गोना पुट ईच वन ऑफ देम ऑन देयर. सो देयर इज माय ब्रेड लोफ. यूज द बिग स्पून. जब हम इसको गार्निश करेंगे वी विल गार्निश इट विद सम बेसिल अगेन, with some leaves. So I'm going to make 3 of each, 3 of tomato and 3 of avocado. Any questions, Shubhanshi? No. So again, thank you Jain Ladies Association and thank you Pooja ji also. She has been in a lot of touch with us and
टू बी ऑनेस्ट मेरे को थोड़ा सा फ्राइड था दैट आई एम गोइंग टू अ लेडीज ग्रुप, बट शी मेड अस सो कंफर्टेबल and thank you again, and I wish you all of you again happy Women's Day again. So Jai Jinendra, again welcome. If you're still tuning, you have just missed one dish, but you can repeat the video later. For now I'm finishing off the first starter, which is bruschetta. Bruschetta में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसा अगर आपने देखा होगा इट्स अ वेरी क्विक स्टार्टर. इवन अगर आपके पास कोई कॉफ़ी पे आ रहा है, इट लुक्स फैंसी येट सिंपल टू डू. सो प्लीज़ आप इसको ट्राई कर सकते हैं इवन जस्ट विद कॉफ़ी, even if you're not doing lunch or dinner. Okay, we have a question from Jyoti Jain. She's asking, हम ये बाटी वाले ओवन में बना सकते हैं? Yes, बाटी वाले ओवन में भी बना सकते हैं, बट बाटी वाले ओवन में आपके पास वो रहेगा प्लेट, तो उस पर आप रख सकते हैं इजीली. आई थिंक अगर आपका वो मतलब है, एक ओवन वो होता है बाटी वाला और एक होता है जो गैस के नीचे होता है. Which one she is asking for? I think she is asking for which one is on the stove. स्टोव वाले पे भी बना सकते हैं, बिकॉज उसमें प्लेट होती है. जहाँ तक मैंने यूज़ नहीं करते हैं हम यहाँ पे नहीं मिलता है इजीली, बट यू कैन डू इट. सो गैस पे आप आराम से उसमें रखिए, उसमें प्लेट होती है, आप उसमें भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट. सो ये मैंने आपका टमाटो वाला 3 पीसेस बना दिए हैं. बेसिल मैं अभी नहीं रखूँगा, जब ये बेक हो जाएगा उसके बाद बेसिल गार्निश करने के लिए लगाएंगे. बट मीनवाइल आई विल स्टार्ट विद कैनेलोनी व्हेन दिस विल बी बेकिंग. Now avocado में एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं करने वाला हूँ. I'm gonna add some mozzarella cheese. Why? Because avocado again itself is bit blunt. तो अगर थोड़ा सा हम चीज़ में ऐड करेंगे, it will taste yummy. It will go with avocado really well. आप टमाटो वाले पे भी डाल सकते हैं, but I'm trying to avoid कि आजकल सब डाइट कॉन्शियस है कि चीज़ कम रखेंगे, so I'm trying to avoid that for you guys. But please feel free. अगर आपको ब्रुश्केटा पे चीज़ डालना है और प्रेजेंटेशन के लिए करना है, यूज मोज़रेला चीज़, इट्स गुड एंड इट डज गो विद ब्रुश्केटा आल्सो. यू विल सी लॉट ऑफ इफ यू आर ट्रैवलिंग टू इटली और ऑल दैट, दे विल गिव विद चीज़ आल्सो. बट अगेन आई प्रेफर इट विदाउट चीज़, टू बी ऑनेस्ट. मुझे थोड़ा सा वो फ्रेश टेस्ट अच्छा लगता है, बट एवोकाडो वाला चीज़ के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा. मोज़रेला चीज़ व्हिच वी हैव ऑलरेडी ग्रेटेड एंड केप्ट हियर. कीप इट दिस वन हियर. और थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं. इट्स मोर टू यू नो उसको च्यूई बनाने के लिए. सो वी आर ऑलमोस्ट डन एंड नाउ वी आर गोना बेक दिस फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 minutes इन लो. और अगर आपको मीडियम में रखना है 5 minutes शुड बी इनफ, बट प्लीज़ कीप ऑन चेकिंग. इट्स इम्पॉर्टेंट आप कौन सा कितना मोटा बना रहे हैं इसको, कितना लोफ को कितना मोटा काटा है, बिकॉज it will start getting brown. So please keep an watch on your oven. Approximately जितना मैंने thick लिया है, it's little bit thicker than the normal bread slice. और उसको इस French bucket को especially होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, because it's bit harder, it's bit different bread. So ये ready है. इस पे मैंने चीज़ नहीं डाला है. I'm gonna put the cheese now. So and then I'm gonna show you how it looks like. And this one I can keep it here. So अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ ये कैसा लग रहा है. Please tell us in the comments if you like this. It's still not ready. It still has to be baked. Yeah, this is the 6 pieces, but I'm gonna bake it and then show it to you how to garnish also. So Shubhanshi, if you can help please. Baking time. So bruschetta done. So which one do you like, bruschetta or buschetta? You have to find out your pronunciation, which one you like. But please अगर कोई आपको बोले कि नहीं आपको इसको ऐसे बोलना है, आप गलत नहीं हो. आप दोनों ही, आपको जैसे बोलना है आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं. Both are correct. Yeah. But in Italian it's like bruschetta. So it's more it's like buongiorno. So it's they go very hard on R and all those words. So I'm gonna keep these aside. I'm gonna use it for my dinner tonight later on. And then now we're gonna come to cannelloni back. So cannelloni में मैं repeat कर रहा हूँ मैंने क्या करा था. I have taken the cannellonis and मैंने उसको warm water में थोड़ा सा उबाल के रखा था. There, these ones थोड़ा सा stick हो गया. That means olive oil was less, but it's not that sticky. So see, you see, I can see it. It's like this. It's very big. It's actually almost like 3 inch. जो आपका normal scale होता है उसका इतना बड़ा. Okay. So I'm gonna keep it here for easier
access to me. And ये मेरा स्पिनच भी ठंडा हो चुका है. Okay, see कितना कम रह गया स्पिनच. It was 200 grams. Right? I think you guys know about it. आप लोग पालक पनीर और इंडियन डिशेज में पक्का यूज़ करते हो, and I'm sure कुछ इटालियन डिशेज में भी यूज़ होता है. Now मैंने अब यहाँ पे जा रहा हूँ. I'm gonna use homemade पनीर जो थोड़ा सा सॉफ्ट है. homemade पनीर जो जनरली होता है वो सॉफ्ट होता है. बाजार वाला थोड़ा सा वो स्क्वायर शेप में आता है, वो यूज़ करने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपको घर पे नहीं बनाना है, बाहर का भी यूज़ कर सकते हो. ऑल्टरनेटिव इसका है नॉर्मल बाहर का पनीर, नॉट द फ्रोजन वन. फ्रोजन वन इसके लिए इतना नहीं जाएगा बिकॉज आपको ये थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए. फ्रोजन वाला नहीं जाएगा. और यू कैन यूज द रिकोटो चीज अगर आपको रिकोटो चीज अवेलेबल है. सो दोज आर द टू ऑल्टरनेटिव्स. बट हमने घर पे बना के इट्स लाइक दिस. इट्स प्रीटी मच मैश्ड एंड आई एम गोना मैश इट फर्दर एंड आई एम गोना पुट स्पिनच देयर. And I'm gonna put some herbs before I mash it because एक ट्रिक बताता हूँ. जनरली आई लाइक कि मसाले या हर्ब्स जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो अंदर मैश हो जाए, वो ज़्यादा ब्लेंड टेस्ट करेंगे आप पे जो भी आपका मिक्सचर होगा. सो वी गोना स्टार्ट विद नॉर्मल. वी गोना स्टार्ट विद सम सॉल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 1. पालक में पहले से ही था बट पनीर को थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट चाहिए होता है. सो प्लीज़ आप डाल सकते हो अगर आपको कम डालना है. मैंने 1 से कम कर दिया थोड़ा सा. Salt is always to taste, as you guys know. I don't need to tell you that. Black pepper is a very important ingredient. Now मैं कम चिली फ्लेक्स यूज़ करता हूँ. I think it generally I know हम लोगों को इंडियंस को थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम लोग यूज़ करते हैं इटालियन डिशेज में. मैं कम यूज़ करता हूँ. You can alternatively best is to use black pepper because black pepper does the same job again. एंड ब्लैक पेपर से उसका टेस्ट खराब नहीं होता. मिर्ची से थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है मिर्ची वाली साइड चला जाता है विच वी डोंट वांट एंड इट रिड्यूसेस द टेस्ट ऑफ इट. बट आप डाल सकते हो चिली फ्लेक्स, नो प्रॉब्लम्स. वी यूज्ड टू डू इट. शिभांशी लाइक्स द चिली फ्लेक्स, सो दैट्स ऑल ओके. बट आई लाइक ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर की कोई मेरे को बेनिफिट्स बता सकता है प्लीज कि ब्लैक पेपर अगर ज़्यादा डालते हैं तो क्या फ़ायदा होता है इसका? प्लीज कैन एनीबडी गेस? Okay, Akash, how much paneer you used? It's approximately 200 grams. Yeah, so 1-to-1 ratio of पालक. जो आपका पालक था शुरू में वो 200 ग्राम था. ये पनीर भी approximately 200 ग्राम है. Okay, so salt pepper हो गया. Coming to herbs now. Oregano. 1 से ज़्यादा डलेगा. I think approximately 2. Basil. I love basil always. बेसिल एक इनफ रहेगा इसमें. एंड देन आई हैव सम पार्सले. अगेन दीज 3 आर वेरी इजीली अवेलेबल इन मार्केट नाउडेज इन इंडिया. सो ये भी मैंने 1 स्पून डाल दिया. सो आई एम गोना मिक्स इट नाउ एंड देन वी विल यूज इट लेटर ऑन. अच्छे से मैश करिएगा. पालक एंड पनीर पूरा मिल जाना चाहिए, कुछ भी अलग से नहीं होना चाहिए. देन ओनली इट विल स्टार्ट ब्लेंडिंग ऑफ. और फिर अगेन इसको थोड़ा सा बेस बनने के लिए मैं इसको रखने वाला हूँ. एंड आई एम गोना प्रिपेयर कैनेलोनी पास्ता के लिए टमाटो बेस, टमाटो प्योरे. थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे. आई एम गोना टेल यू अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट फॉर अ टमाटो प्योरे. इट इज गोना बी बिट डिफरेंट. एंड हिंट दे रहा हूँ, आप वो वैसे ही टमाटो प्यूरी इंडियन सब्जी के लिए बनाते हैं. सो यू यूज समथिंग फॉर इंडियन सब्जी. ओके, आई थिंक इट्स वेरी मच मैश्ड. कैन यू सी? स्मैश्ड. इसको मैं फिलिंग करूँगा बट मैं फिलिंग अभी नहीं कर रहा हूँ. मैं फिलिंग जब प्योरे बन रहा होगा मैं तब कर लूँगा. सो दैट आई कैन यूटिलाइज टाइम एंड देन वी कैन टॉक ऑल्सो. लास्ट के लिए मैं थोड़ा टाइम छोड़ना चाह रहा हूँ. Now bruschettas are ready, by the way. Can you see? Yeah. Now let's garnish it and then हम थोड़ा सा ये खा सकते हैं. And again I'm gonna take some basil off my plant. Washing it.
So generally अगर आप एक पे एक लगाएंगे तो बेटर है, बट इतना बेसन नहीं है, so it's okay, you can put it one here, I'll put one here, gap दे के थोड़ा सा रख दूंगा, one avocado one also, and on here also. Salt and pepper I don't recommend to put it from the top, but still if you want you can put, but there's enough salt and pepper. And जो bread है वो थोड़ा सा olive oil soak करके फिर bake करा था हमने, so it's all gonna give you a good blend taste of everything. So here it is. Avocado ones, tomato ones. Again, any questions? Ping us in the comments, please. And this dish is ready. I'm gonna eat it. मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मेरे को खाना है अभी, but I'll eat it later on. I have to keep you guys also busy with the next dish. So what is next? Now basically cannelloni के लिए पास्ता पे वापस आ जाते हैं. हमारा appetizer ready है, starters are there ready. Cannelloni का mixture एक बन चुका है. Now I'm gonna make the tomato puree base. So tomato puree base के लिए I've tried something different. और ये अभी recently ही try करा है. So basically 3 tomatoes, yeah, and we are gonna use tada cashews. Yes, it's about 8 to 10 pieces of cashews. Cashews से क्या होता है, जो टोमेटो प्योरी है जैसे इंडियन सब्जी में यूज़ करते हैं वो क्रीमी हो जाती है, बट वी डू नॉट नीड टू मेक इट क्रीमी, बट हमें उसका वो ब्लेंड है जो टोमेटो का है वो बिल्कुल अलग ऐसे अलग से नहीं होता है, एंड इट जस्ट गिव्स अ गुड टेक्सचर ऑफ द टोमेटो प्योरी, एंड यू विल सी आई एम गोना शो यू ऑफ. सो बेसिकली ये डालने वाला हूँ मैं. इसमें अब आप एक मिर्च भी डाल सकते हैं, राइट. सो यू कैन पुट 1 चिली इफ यू वांट लाइक स्पाइसी फूड. घर पे बच्चों को स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, एंड यू नो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ इट इज़ सीन दैट बेसिकली कि इटालियन डिशेस जो है बच्चों में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आई एम गोना यूज लॉट ऑफ वेजिटेबल्स ऑल्सो. मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करें. Even we try to give, he's only 3 years old, but we try to give him, but other nephews and nieces, they love Italian dishes. And ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है. मेरी एक नीस है 10 साल की, वो कुछ नहीं खाती ज़्यादा, but she loves these bruschetta, and she calls these as Mamma Mia breads. So yes, so this is all kids friendly. Kids will love it. I'm sure about it. So this is what it is. Chili आपको अगर डालनी है तो डालनी है. And I'm not gonna put the mixie on in front of you, but this is 1 chili, 8 to 10 cashews and 3 tomatoes, and I'm gonna give to you, and I'm gonna do some magic to get the puree back. Okay, till the time I grind it, there are few questions for you. Let's do that, because now I think I'm a bit free also. I have time to get my warm up. Tina is asking, my French loaf generally becomes too hard when I make bruschetta. Okay, so she wants to basically make it not hard. So आप यूज़ करें fresh loaf या French baguette. अगर मैं इसको भी अगर अभी 2 दिन और रखूँगा, this will start getting hard, but don't worry about it. या जब भी वो आपका hard हो जाए, use a little bit of extra olive oil, yeah, and bake it. वो आपका थोड़ा सा वापस से texture आना शुरू हो जाएगा, but it will obviously not be fresh. But baguette जब भी आप और loaf आप जब भी लाओगे bread का, try and use it within 2 days. Yeah, आप उससे ज़्यादा अगर रखोगे तो वो हार्ड हो ही जाएगा. दैट इज़ द नॉर्मल थिंग विच हैपन्स. बट इफ यू डोंट पुट इट इन, एंड प्लीज डोंट पुट इन द फ्रिज. या बकेट इज नॉट टू बी पुट इन द फ्रिज. नॉर्मल टेम्परेचर पे, इवन अगर गर्मी भी है, आप अपने किचन में कहीं पे भी जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है, इन अ ड्रॉर और इन अ कबर्ड, कहीं पे भी रख दीजिए. ओके. Okay, next question है from रूपा ठाकुर. क्या ब्रुस्केटा को फ्रिज में रख सकते हैं, नेक्स्ट डे भी खा सकते हैं, या ओनली फ्रेश? Yes, नहीं आप रख सकते हो फ्रिज में. This is you can keep it in the fridge, which we are not going to put in the fridge. After an hour or so, me and Shubhanshi are going to eat. So हम गैप लेने वाले हैं. उसके बाद हम सीधे उसको वार्म करेंगे ओवन में, लो फ्लेम पे ऑन करेंगे, बेसिकली हॉट करेंगे, उसको वार्म करेंगे, बिकॉज हाई पे करते ही वो ब्राउन हो जाएगा एंड इट विल गेट वेरी वेरी क्रिस्पी, विच इज नॉट द पर्पस. बिल्कुल क्रिस्पी नहीं रखना. सो माई पैन इज गेटिंग वार्म. आई एम गोना पुट सम ऑलिव ऑयल व्हाइल टॉकिंग टू यू गाइस. Shivanshi, any other questions? No. Olive oil, आप in general अगर आपको नहीं पता कि मैं कितना डाल रहा हूँ, it's approximately 4 tablespoons if I make or call it that way, कि आप अगर आपको अंदाज़े से डालना है, but इतना है. So you can see it now. Yeah, I'm gonna put a little bit more. I think it's less because puree ज़्यादा है. Puree 3 टमाटो के लिए है.
This is half capsicum which is chopped and kept ready. Again मैं vegetables dry use कर रहा हूँ ज़्यादा ताकि kids को ये अच्छा लग सके and kids love it. I'll lower the flame, it's a bit high. Okay. Thank you. So not gonna add anything, सिर्फ कैप्सिकम को हम कर रहे हैं. Again jam recipe है, we are not gonna use anything, no onion, no aloo, no garlic, nothing. So we add, trust me, it will taste really nice. It will taste very good even without all those ingredients. कोई ज़रूरत नहीं होती है उन सब ingredients की. ब्रुश्केटा में तो वैसे ही नहीं डालते हैं. They put garlic. I mean in the restaurants and all, if you will see, they will put garlic. And अगर आप नहीं डालेंगे, it will not taste at all different to what it is. Okay. कैप्सिकम थोड़ा सा फाइन चॉप रखिएगा ताकि वो मुंह में नहीं आएगा प्योरे के. And I'll tell you why, because it becomes the base of the cannelloni pasta. Okay. So this is tomato puree. देखिए थोड़ा सा thick हो गई है because we have put cashews. It is a bit different to normal and थोड़ा सा different. Now इसमें मैंने एक और चीज़ करी है. Saffron. Yes, we have put some saffron. Approximately 4 सिर्फ flavor देने के लिए है वो. It really will give the good blend of pasta. अगर बच्चों को केसर नहीं पसंद आप नहीं यूज़ करिए, बट अगर आप ये बड़ों के लिए बना रहे हैं सिर्फ, तो आई थिंक केसर विल बी बेटर. सो प्लीज यूज इट. आई एम गोना पुट दिस. ओके शिवांशी, थैंक यू. थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं इसको एंड इसमें मैं हर्ब्स डाल के आई एम गोना गो टू start making the cannellonis. इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे हैं. थोड़ा सा salt, pepper and herbs डालने वाले हैं इसमें. Salt again थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा. 3 tomatoes यूज़ करें मैंने मीडियम साइज के, so it's important that you do that. Again black pepper, very important ingredient in Italian dishes. Only gonna put half. Oregano 1. अब हर्ब्स जो हैं आप प्लीज़ टोमेटो प्यूरी का वेट मत करिएगा कि वो बन जाए उसके बाद डालिएगा, बिकॉज हर्ब्स जो है ड्राई वाले स्पेशली, इट्स बेटर दैट यू पुट इट देयर इटसेल्फ. ब्लेंड अच्छा आएगा उसमें प्योरे का जब वो बन जाएगी. एंड पार्सले ऑल्सो. सो बेसिल डाला था वो मैंने अभी, एंड दिस इज नाउ पार्सले. ऑल 1 स्पून ईच, एंड दैट शुड बी गुड टू गो. ओके चलिए अब मैं पूछ लेता हूँ आपसे, कैनेलोनी आपको क्या लगता है, ये कोई नया टाइप का पास्ता है या काफ़ी टाइम हो गया है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक व्हेन इट वाज इन्वेंटेड, व्हेन इट वाज ट्राइड फर्स्ट बाय एनी शेफ इन द वर्ल्ड. ऑब्वियसली ये बना वहाँ पे था, दिस वाज इन्वेंटेड इन इटली, इन नेपल्स. सो आई एम गोना पुट लिटिल बिट हायर द फ्लेम एंड लेट इट कुक. एंड वी गोना पुट नाउ कैनेलोनीज. उसका मिक्सचर हम उसमें रखने वाले हैं एंड उसका हम बेकिंग की तैयारी कर रहे हैं. एंड देन व्हेन वी आर बेकिंग इट आई एम गोना शो यू द ड्रिंक आल्सो. आई थिंक यू हैव टू टर्न दिस वे शिवांशी. ओके, दिस इज द बेकिंग पैन आई एम टेकिंग एंड आई एम गोना कीप इट हियर. नाउ इसको मैं थोड़ा सा हाथ भी यूज करने वाला हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड, इट्स नो प्रॉब्लम्स, यू कैन यूज दैट, इट्स बेटर. स्टफ अच्छे से होना चाहिए ना. दिस इज द होल ट्रिक अबाउट कैनेलोनीज कि वो स्टफ अच्छे से होना चाहिए. नाउ कैनेलोनीज को स्टफ करने के लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको, विच इज़ टू बेसिकली
आप एक साइड से उसको हाफ डालें. ओके, आई एम गोना शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये मैंने हाफ भरा है एंड देन आई एम गोना टर्न इट अराउंड एंड देन फिल द रेस्ट ऑफ इट. गिरेगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज वो पनीर है, थिक है इस ये. और इसमें अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो टाइप की कैनेलोनीज आपके सामने रखने वाला हूँ, विच इज़ वन विद शेदार चीज़ एंड वन इज़ विदाउट. ओके, नाउ अगर चीज़ कम खाना है, अगेन बहुत फैट हो गया है इसमें तो बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ डोंट यूज़ इट. बट शेदार चीज़ से क्या होता है, आपको एक अच्छा सा ब्लेंड मिल जाएगा. शेदार चीज़ जनरली यूज़ होता है आपके बर्गर्स वगैरह में, तो वो थोड़ा सा मेल्टेड चीज़ बहुत अच्छा से ब्लेंड कर जाता है. ओके, सो आई एम गोना कीप इट हियर जस्ट सेकंड एंड आई एम गोना पुट शेदार चीज़ फॉर द नेक्स्ट वंस. ओके, मैंने एक अलग से बना दिया है. और चीज़ अगर आपको डाइजेस्ट करना, यू नो, इट इज सेड कि आप अगर जितना चीज़ खाओगे वो मोटे हो जाओगे. आई थिंक व्हाट यू नो द इन यूरोप व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, आई नेवर गेन फैट बाय द वे देयर. मैं दुबई आके ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, बट वहाँ पे मोटा नहीं हुआ था, जबकि वो चीज़ वहाँ पे पूरा डाइट में था. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाई डोंट आई गेट यू नो फैट विद चीज़? यू ड्रिंक लॉट ऑफ कॉफ़ी. वहाँ पे हम रहते हैं लोअर फ्लेम करके, वहाँ पे हम रहते थे, तो बेसिकली होता क्या था कि हम कॉफ़ी बहुत पीते हैं एंड दैट इज एक्चुअली विच डाइजेस्ट. नाउ एवरी यूरोपियन लंच डिनर, इटालियन हो फ्रेंच हो, उसमें लास्ट में डेजर्ट के बाद दे ड्रिंक कॉफ़ी विच इज़ लाइक ईदर एन एक्सप्रेसो शॉट और अ नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी और कैपुचिनो. जनरली नॉट मिल्क बेस्ड कॉफ़ी, बट आप थोड़ा सा मिल्क डाल सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ब्लैक पसंद नहीं है. एंड दैट इज़ वॉट इट विल बेसिकली, आपका बिल्कुल वो जो फैट है, वो चीज़ है, वो निकल जाएगा बॉडी से. सो आई एम गोना कीप दिस spoon aside, it's too big for this one, and fill up the other cannellonis. I'm gonna only do 6. 6 is good enough for 2 people. Again ये heavy dish है because इसमें बहुत सारा पनीर गया है and बहुत सारा चीज़ भी गया है, बहुत सारा spinach भी गया है, so it's and then tomato है, capsicum है, so it's very healthy for all of you guys. हाफ भरा फिर से मैंने एक साइड से एंड देन नेक्स्ट साइड से मैं हाफ भरा. Okay, I'm gonna ask Shubhanshi for your help a little bit, but just I'll fill 3 and then I'll give you the rest. You fill it up, and meanwhile I'll start preparing it for baking, and then you can fill it up. Any questions on cannelloni? अगेन, अगर आपके पास ऐसा राउंड शेप पास्ता नहीं है, अगर अमेजोन से आपको नहीं मंगाना है, सिर्फ ट्रायल के लिए भी यूज़ द पास्ता शीट्स विच इज़ जनरली अवेलेबल. पास्ता शीट्स हमारे जनरली अवेलेबल रहता ही है हमारे ग्रॉसरी के पास, हमारे लोकल स्टोर्स के पास भी. बट नाउ डेज एवरीबडी प्रेफर्स टू बाय ग्रॉसरी ऑल्सो ऑनलाइन, सो यू विल डेफिनेटली गेट दिस एंड दे विल डिलीवर यू क्विकली ऑल्सो. ओके, 3 रेडी. या प्योरे का थोड़ा सा ऑयल भी और साइड में आएगा तो रेडी हो जाएगा. सो देन आई विल डू इट. ओके, मीनवाइल आप में किसी ने भी बताया नहीं मुझे कि कैनेलोनी आपको क्या लगता है कि नया टाइप का पास्ता है, ओल्ड है, और प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट कैनेलोनी. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डिड यू फाइंड ऑन गूगल? Tina answered it. It was made in early 1990s. Yeah, in fact 1907. Tina. Sorry.
more. मैं आपको फिल करते हुए इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहे. हमने पहले सोचा था फिल करके रखते हैं, बट आई थिंक इट्स बेटर दैट कि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहे. देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, बट यूज़ योर सॉफ्ट हैंड्स. यस, आई एम बिट क्विकर बिकॉज मैंने ये बना चुका हूँ थोड़ी बार. सो बट प्लीज़ एंड फिल इट प्रॉपरली. इसमें आप बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, ओपन स्पेस मत रखिएगा, वरना बेक होते हुए इट विल नॉट बी गुड एक्चुअली. और जब आप खाएंगे तभी ये नहीं सही रहेगा. सो 5 एंड वील डू 6 इन टोटल. देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स जो हैं बिल्कुल उसके बराबर बने हैं. सो प्लीज रिमेंबर 200 grams of palak, 200 grams of paneer, and I mixed it with some herbs, salt and pepper. And this should be good, Shubhanshu. So, any other questions? Otherwise, I'll start preparing for the bake. Yes, you can start. Okay, thank you. Okay. ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं. सी लुक एट द कैनलोनीज. पहले मैं दिख रहा था इसमें से, अब मैं आपको नहीं दिखूंगा. राइट, ओके, प्योरी रेडी है. मीनवाइल just I'll show you how the texture of the puree. It is not red color. It is bit orangish on pinking side. Saffron is smelling really good. Again, अगर आपको ये बड़ों के लिए बनाना है, I definitely recommend saffron. But अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है and you think that they are irritated with saffron smell, some kids are, so please do not use it. It's not a mandatory ingredient. Please. So I'm just going to prepare the base now, which is this. Make some space. Okay, so ये empty है अभी. What the first thing which we do in the baking pan is to put the puree. Okay, Shubhanshi, can you pass me the spoon? No, I have it. Sorry. Thank you. So I'm gonna put it here. बिल्कुल आप इसको गर्म ही रख सकते हैं. No problems with that. कोई आपको वेट करने की जरूरत नहीं है. प्लीज़ इसमें कंजूसी मत करिएगा इसके प्योरी को लगाने में. इट्स अ हेल्दी वन. आई हैव यूज्ड नो बटर, नथिंग एट ऑल. थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं नीचे. थोड़ा सा और स्पेस है यहाँ पे. आई वांट टू शो यू एक्चुअली कि वो कैसा लगता है, ताकि आपको देखें कि मैंने पूरा भर दिया उसको. इट्स इम्पॉर्टेंट. इट्स द बेस ऑफ योर पास्ता. Can you see? Steam भी आ रहा है एकदम गर्म, right? Okay, so what next? What next is basically I'm gonna put the cannellonis now. Can you see? So first one. How many cannellonis did we have? 6. But that's for this pan. You can always do more. I love this pan because of one simple reason, because इसमें आते ही ये मैं सीधे सर्व कर सकता हूँ. Now put the cannellonis in a little bit of gap, because we're gonna put some cheese on it, and it will be better that आप gap रखें उसका. थोड़ा सा वो blend taste हो जाएगा. And जैसे मैशर भी गिर गया तो उसकी टेंशन मत करिएगा, कोई नहीं, ऐसे हो जाएगा, because anyway वो प्योरी में जाने वाला है. So I'm gonna put another one here. एंड थोड़ा सा अपना वुमेंस डे का बहाना देखिए. प्लीज़ अपने हस्बैंड्स या जो भी हैं आपके पार्टनर्स घर में, जो भी मेल्स हैं, उनको बोलिएगा कि ये बनाएं. वीडियो देख सकते हैं वो ये वाला.
Then I'm sure we will put the link. Jain Ladies Association also will put the link of the recording. So please ask them to prepare also. It's not difficult. Okay, there is one question from Sony Bothra. Yeah. She's asking, can we make this without palak or any other substitute? You can use different ingredients. One is different substitute of palak is basically आप इसमें दूसरे थोड़े से herbs use कर सकते हैं. Yeah, and you can use some vegetables also. If you do not like palak, use something, for example, like अगर आपके पास basil or parsley के fresh leaves हैं, you can use that also. Otherwise, you can use the capsicum bit also. Yes, so capsicum का भी आपका जा सकता है. Again, mushrooms हम Jains नहीं खाते हैं, but otherwise, you can put mushrooms and olives also there. There's no problems with that at all. Olives anyway मैं topping के लिए डालूंगा, but you can definitely put olives instead of that. But पालक और पनीर का मेल तो इंडिया में भी बहुत strong है और Italian dishes में भी strong है. So definitely it is one of my favorite ones, but you can use all the ingredients which I've told you. Now I'm gonna cover off my cannellonis with more gravy. Okay, more gravy, and more gravy. One spoon डाल रहा हूँ मैं एक पे, तो वो पूरा कवर हो रहा है उससे. थोड़ा सा और डाल देते हैं, पूरा कवर अच्छा लगेगा. ज़्यादा प्योर है, it will taste good. Okay, so what next? Very quickly now, we will finish off this with some herbs and some cheese. But before putting herbs, we're gonna put some mozzarella cheese. हमने यहाँ पे grate करके रखा हुआ है पहले से. I'm gonna put, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा cheese जाएगा. So yes, please do put it. अगर आपको cheese नहीं डालना है तो मत डालिएगा, it's okay. बट चीज़ से थोड़ा सा वो जो प्रेजेंटेशन होता है, ऊपर का ब्लेंड क्रीमी टेस्ट होता है, वो आ जाता है. ऑल्टरनेटिवली आप एक क्रीम चीज़ आता है, आई थिंक इंडिया में भी अवेलेबल है अब. So please, you can use that also, in the puree itself. Then you don't have to put it on the top. Now this can be done in various ways. I'm gonna try the cannelloni in a different puree next week or sometime. Please आप RS Magical पे आ सकते हैं. I request all of you to see that later on, and we're gonna do basically a different type of cannelloni. It's just not gonna based on the जो आज हमने ingredients बनाए हैं. So Tina, to your question also, it will be spinach and all other ingredients I'm gonna use. So please do tune in. This I'm gonna do next month. Just थोड़ा सा और बता रहा हूँ अपने बारे में, because cooking has been my hobby. It is my stress buster. मैं काम करता हूँ, मैं शिवांशी से बोलता हूँ I want my own space to in the kitchen, and please you go and you do whatever you want to do, but kitchen is my space for that. At least one time a week I will do something, and then that is how we do that. So थोड़े से herbs डालेंगे जल्दी से, and then we're gonna move towards our drink. Okay, little bit of salt, very little I'm putting, and little bit of black pepper, sprinkling it on the top, just so that blends well. And I'm gonna put little bit of cheese later on more. Again थोड़ा सा oregano डाल रहा हूँ मैं, approximately 1. Herbs में कंजूसी मत करिएगा. Italian dishes is all about salt, pepper, basil, oregano and parsley. Yeah, this is all about it. Obviously olive oil and all, but इसी में ही घूम फिर के सारी Italian dishes बन जाती हैं. Main spices are these only. Okay, मैंने basil डाल दिया है. Now I'm gonna put some parsley, and then again cheese on the top, so that जो herbs हैं वो एकदम चीज़ के बीच में रहेंगे, and it will look nice. And then इसको जब हम garnish करेंगे, we will garnish it with olives and basil at the end. That we'll do at the end. And then with some cherry tomatoes also, अगर आपके पास हैं, well and good. नहीं है, it's okay. So last but not least, putting some again some mozzarella cheese. Gonna crush it. Okay, Tina wants you to do more Italian recipes. Okay, fine, Tina. We will definitely.
I have one of the things which I actually did with one of my Russian friends was pasta. And basically उसको मैंने trust कराया कि मैं तेरे को vegetarian खिलाऊंगा, and it was really came out very well, and I can do that, and it's also available. That video is available on RS Magical already, but definitely I can do that again sometime. Something different also, because pasta में बहुत varieties बनते हैं. So parmesan. Okay, Akash, what do you put in this? What is Parmesan this? cheese. Ah, Parmesan cheese, all done. It's ready. So look at the cannellonis. It looks very different to how it was. And I'm gonna put in the preheated oven for approximately 15 to 20 minutes. 180 degrees पे रखा हुआ है oven हमने पहले से ही गर्म करके. It's preheated. Yeah. Okay. So gonna go in the oven. So temperature set कर देना शुभांशु, please, if you don't mind, before I start doing the fish. Yeah. Thank you so much, Shubhanshi. Very helpful. Okay. So starters already ready here. Main course 15-20 minutes. What do we do? Now we will ask. You can ask more questions. But I'm gonna do a drink for you, a different drink, and this is gonna be mocktail. I'm gonna remove all these ingredients, and we're gonna make some space for our mocktail drink. Very refreshing, very summer-oriented drink, but made with some tropical blends and all that, and goes well with pasta and everything. So let me bring this very carefully here. So we are ready. Okay. So what we're gonna do? I'm gonna put 2 glasses, one for Shubhanshi, one for myself, and we're gonna start now. So basically, मैं आपको ये पूरा शुरू से दिखाने वाला हूँ. Let me wash my hands because it's getting sticky because of cheese and everything. So मैं आपको ये drink पूरा शुरू से दिखाने वाला हूँ. Passion fruit is very important ingredient. Mango juice concentrated आप ले सकते हो. Fresh mango juice का pulp ले सकते हो अगर आपको concentrated juice नहीं लेना है. But अगर आप fresh mango ले रहे हो, so please you will have to add sugar. And it is important to add the sugar there also. So I'm gonna get one ingredient which is missing here, which is ice cubes. Ice cubes are also ready. So what we're gonna do first? We're gonna cut the passion fruit into 2 halves. I'm gonna take one of them. ये बड़ा है थोड़ा, मैंने इसलिए 1 ले रहा हूँ, but you can take 2 also if you're having a small one. थोड़ा सा हार्ड है ये. Okay, got the spot. I'm going to show you how passion fruit looks from inside. Passion fruit का आपको पता है हिंदी में नाम क्या है? Can please anybody tell me? Please send the comments and Shubhanshi let me know if anybody answers right or wrong, then we can correct them. Passion fruit actually was found in South America, but आपको पता है ये सबसे ज़्यादा भी कहाँ मिलता है? It's a tropical fruit, सबसे ज़्यादा एशिया में मिलता है. Thailand, Vietnam, this is very famous there. तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, बट इंडिया भी प्रोड्यूस करता है ये. आई डिड नॉट न्यू दैट एक्चुअली until recent times, and इंडिया भी प्रोड्यूस करता है, and it's one of the fruits. इसमें इतने सारे अच्छे constituents हैं, basically vitamin C and everything. I just love it. Even I just gobble up like that with a spoon, but for now it is gonna go in my drink. So I'm gonna take the spoon. तो मैंने थोड़ा सा इसी में ही अंदर मिक्स कर दिया है ताकि इसका जो छिलका है वो नहीं आएगा. And then I'm gonna put it like this. Okay. So this is gone one passion fruit. I have again tried to use fresh only. Mango मैंने इसलिए fresh नहीं करा because we don't want to add sugar, but obviously mango concentrated juice, I'm sure they would have added sugar, although they say no sugar added, but I don't know how they do it. I really don't know कि वो कैसे लिखा हुआ होता है सारे ingredients में, juices में sorry. So passion fruit, I'm gonna mix. इसकी dressing जो है वो हम बाद में कर देंगे. I have more passion fruits. So juice आ गया है.
पल्प निकाल लिया है पैशन फ्रूट का। ये मैंने थोड़े से मिंट रखा हुआ है पहले से ही। I'm gonna put first the mango juice. Approximately ये हाफ है, 100 ml है, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाता है। अगर आपको मीठा इसके हिसाब से डाल सकते हो आप बेसिकली इसमें। So you can add less or more. I like less. Shivanshi likes more, but that's always the story between husband and wife. So mint. Again, mint is very important. Mint को अगर आप blend करेंगे इन सब drinks के साथ, it will give a refreshing. Plus, it will give us, you know, a very nice feeling in your stomach also. Mint is very good for that. Okay, just put some sparkling water there. First, I'll put normal water, and I'm gonna go to the fridge and pick up some sparkling water. Now, sparkling water का constituent जो है सोडा होता है, but soda is a bit less, you know, preferred in these drinks. But you can put soda, no problems. But अगर आप सोडा डाल रहे हैं तो water की quantity ज़्यादा रहेगी। जो मैं drink बना रहा हूँ उसमें equal quantity of water and sparkling water रहेगी। Okay, so now any questions, Shivanshi? No. Nothing? Okay. See, it already looks refreshing. But wait, right? Pooja Sancheti answered your question. It is Krishna Fal. It is Krishna Fal, correct. So it does come in India also. There's a lot of history behind passion fruit in India also. Krishna Fal है, आप प्लीज़ गूगल पे जाके प्लीज़ रेड करिएगा। पूजा जी बिल्कुल सही बोला आपने। Again, thank you for helping us out, and thank you for Jain Ladies Association to invite me to let me open up in front of everybody. I'm gonna put some ice here. Okay. And please, passion fruits के आपको जो seeds हैं वो हटाने नहीं हैं. You can have those seeds. There's no problem with that. Looks refreshing already. So what we're gonna do? We are gonna put this in the glass. Okay. First, let me put some more sparkling water. I think it's less. Frizzle नहीं आ रहा है. Frizzle नहीं आएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा. So now it's better, I think. Yes. बाकी का मैं स्पून से करूँगा बिकॉज मिंट है तो नहीं मिक्स इट। मीनवाइल हमारा कैनेलोनी जो है वो रेडी हो रहा है, बट हमने सोचा कि ड्रिंक भी बना के रखते हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव समथिंग टू ड्रिंक ऑल्सो अलोंग। कल संडे है, या सो प्लीज़ ट्राई इट आउट एंड यू नो कम बैक विद एनी क्वेश्चंस टू अस, नो प्रॉब्लम्स। सो आई विल पुट इक्वल मिंट इन बोथ। एंड जो इसको मैं गार्निश करने वाला हूँ, आई एम गोना गार्निश इट विद समथिंग डिफरेंट, यू विल सी इट एट द एंड, सो स्टे ट्यून्ड विद मी प्लीज। इक्वल अमाउंट्स। एंड इसमें ट्रिक ये था, आपने देखा होगा ड्रिंक में मैं दोनों बार साथ में डाल रहा हूँ मिक्सचर, कभी इधर कभी उधर, बिकॉज क्या होता है पहले थोड़ा सा जूस निकलता है, पानी निकलता है, सो इट्स बेटर कि थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, एंड देन इट विल बैलेंस इट आउट। नाउ आई थिंक वाटर एंड स्पार्कलिंग वाटर इज बिट लेस इन माय ओपिनियन, ice also, so I'm going to add some water, no problems, you can add it like this, add it, and when you put sparkling water you can mix it. Looks really nice so far, it's going good. Okay, now to do the garnishing.
for the drink. I have taken the passion fruit. Passion fruit का जो छिलका होता है वो थोड़ा सा hard होता है, so you have to use a sharper knife. This is what it is. I've taken a smaller one because this is for garnishing. This is nothing else. First, let me mix it. Because ये हो चुका है. Okay. ज़्यादा ठंडा चाहिए तो आप प्लीज़ और आइस डाल सकते हैं इसमें. No problems with that. And just to garnish it a little bit. Good. And इसको upside रखना है. Okay. So I'm gonna try it out in front of you. Upside Akash. Yes. Upside Akash. Yo. Okay. So it's ready. Now इसको मैं कुछ different तरीके से garnish करने वाला हूँ. Meanwhile I'm getting some basil washed. Because हमारा जो दूसरा डिश है वो भी रेडी हो चुका है. So then we will have enough. Okay. I mean, और fresh basil here. Shivhanshi, if you can wash for me, please. Thank you so much. See the drink? Looks nice, right? Looks nice. Now, इसको garnish करने के दो तरीके हैं. Either you can use these basil leaves, or either you can use the mint. Any of the two. Mint हम already डाल चुके हैं, so it's just about garnishing, and it will give a nice smell also. Very nice fragrance if you just do like this right on the top of my passion fruit. Right on the top of my passion fruit. Okay. So, ready, refreshing, lot of vitamin C, all fresh. You can use, and baking का भी आवाज आ गया, so it was perfect timing. And it was all fresh ingredients. Sparkling water की जगह again आप सोडा यूज कर सकते हैं, normal सोडा जो आता है. And then water definitely use थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा because सोडा थोड़ा सा कड़वा होता है. So drinks are ready. Shivhanshi, put it here. Okay, let's see if cannelloni is really ready or not. Yeah. Ooh, looks like so. Yes, it is. Okay, careful. ना इसको थोड़ा सा और भी बेक कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल इसको मोज़रेला चीज़ का इन लोगों को ब्राउन अच्छा लगता है इंडिया में. यू कैन डू दैट. इट्स प्रीटी वार्म, सो आई एम गोना कीप इट हियर. Now I'll come close to you guys to just show you how it looks like after bake. It looks like this. Again, आप थोड़ा सा ज़्यादा बेक करना है कर सकते हैं, but मुझे ब्राउन ज़्यादा पसंद नहीं है. Even you know, even in the pizza, I don't like that brown color का चीज़ होता है, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जला हुआ फील करता है. That's why. Okay, Jyoti Jain wants to know that Krishna fruit का taste sweet होता है? No, it is not sweet. It's a sweet and खट्टा also. अगर आप देखोगे जनरली लोग ड्रिंक्स में लेमन डालते हैं, मैंने लेमन बिल्कुल यूज़ नहीं करा. इट इज़ दैट मच विटामिन सी एंड दैट मच खट्टा ऑल्सो, बट इट्स स्वीट ऑल्सो. इट्स बोथ स्वीट एंड खट्टा ब्लेंड देयर. सो दैट्स वाई पैशन फ्रूट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट वंस आफ्टर मैंगो. ऑब्वियसली मैंगो एंड लीची के बाद आता है पैशन फ्रूट. आम के दिन शुरू हो गए, सो येस यू कैन गेट फ्रेश फ्रूट ऑल्सो. वी जस्ट रिसेंटली गॉट आवर आर्म्स. So now the bake is ready and we are done with it almost. Now I'm just gonna garnish it a little bit. For garnishing you can again put the tomato puree also, but I think we have put enough, so I'm just gonna put basil on my cannelonis. Yeah, and where is my tomatoes? I think it's here. Shubhanshi, I think I've given to you tomatoes. Thank you. Tomatoes generally आप बेक करके डाल सकते हैं, but I'm just using it for garnishing. It is nothing much to be honest to you. हमने टोमेटो पहले से ही बहुत डाल दिए, but अगर आपको टोमेटो वैसे भी अच्छा लगता है बेक करने के टाइम पे डाल सकते हैं. Okay, so we are almost done guys. We are almost done. Just basil से थोड़ा सा garnish करके मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ.
ताकि थोड़ा सा आपके मुंह में पानी आए, आपको भूख लगे, एंड यू ट्राई इट एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक इट और नॉट. Alright, okay, good. And I'm gonna do some magic here in this. That is why I was saying that I love this baking dish. Okay. So it's ready. I'm gonna show you now. It's a bit warm still. Can you see it? It's on the plate, not on my hand. But all the plate is covered. Yeah, so it will take, the more the gravy you put, it will taste nicer. So that's why I have put a lot of gravy, and we're gonna eat it right in our lunch and dinner now. We are bit 1.5 hours behind. I'm just gonna make it clean. So this looks nice also. Now, आजकल marketing का दिन है, so presentation is very important. That's why I'm giving a lot of focus in garnishing also. Again, thank you for tuning in. Jai Jinendra, and thank you again Jain Ladies Association and RS Magical and Pooja ji, especially Shubhanshi, thank you everybody else who have made, especially my mom also, who is an inspiration for me, and my nani also. So they all have actually made me into cooking. So thank you again. Jai Jinendra. I hope you liked it, hope you enjoyed it. Please throw in some comments, and please tune in to RS Magical for more videos. And subscribe to our YouTube channel to see more, and you've asked for more Italian dishes, definitely we'll come up with more. So I'm signing off. Thank you again. Jai Jinendra, and have a good weekend. Bye.